السلام علیکم. ہماتن گوش میں خوش آمدید. تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل. جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان. گرداب. گرداب، کیس نمبر 29. اچھا تو اب میں چلتا ہوں. ویسے تو دن کا وقت ہے، اس لیے کسی پریشانی کی کوئی بات نہیں. پھر بھی تم اچھے طریقے سے دروازہ بند کر کے رکھنا. آنگن میں بھی زیادہ نکلنے کی ضرورت نہیں. وہ خبیث پرویز سارا وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھا کبوتر بازی کرتا رہتا ہے. تمہیں دیکھ کر خامخواہ چھیڑخانی شروع کر دے گا. میں نے سرمد سے کہہ دیا ہے کہ اگر اسے موقع ملا تو اس طرف کا چکر ضرور لگا لے گا، ورنہ میں تو انشاءاللہ رات تک تمام کام نمٹا کر چلا آؤں گا. چھوٹا سا سفری بیگ شانے سے لٹکائے عامر مہبانوں کو ہدایات اور تسلیاں دیتا تھا. بڑی کوشش کے بعد وہ اپنے دفتر سے چھٹی لینے میں کامیاب ہوا تھا اور اب مہبانوں کے کام سے ہی جا رہا تھا. پرویز کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس دن کی جانے والی حرکت نے اسے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا. پرویز سے مقابلہ کرنے کے باوجود بھی وہ جانتا تھا کہ پرویز اپنی اس شکست پر آرام سے نہیں بیٹھے گا اور مسلسل اسی کوشش میں لگا رہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے یا مہبانوں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. پرویز کی ایسی کسی حرکت سے وہ مہبانوں کو بچانا چاہتا تھا اور مہبانوں کو بالکل محفوظ کر دینا چاہتا تھا. مہبانوں کی حیثیت اس کے گھر میں ایک امانت کی سی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو کوئی بھی نقصان پہنچے. سرمد کو بھی وہ رات ہی اپنے پروگرام سے مطلع کر چکا تھا. اس نے بھی اس فیصلے کی تائید کی تھی، بلکہ وہ عامر سے بھی زیادہ بے چین تھا کہ جلد از جلد خواہ مول لی جانے والی اس ذمہ داری سے فوراً نجات حاصل کر لی جائے تو بہتر رہے گا. آپ میری طرف سے بالکل بے فکر رہیں. میں خالہ جی کے پاس ان کے کمرے میں ہی رہنے کی کوشش کروں گی. ویسے بھی دن کی تو بات ہے، ویسے بھی آپ دفتر میں ہی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سارا دن آرام سے بغیر پریشانی کے ہی گزر جاتا ہے. اس نے عامر کو تسلی دی تو وہ اپنی ماں کے کمرے میں جا کر ان سے ملاقات کرنے لگا. انہیں اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے دفتر کے کچھ اہم کاغذات وغیرہ پہنچانے ایک دن کے لیے دوسرے شہر جاتا ہے. انہوں نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا. دھیان رکھیے گا وہاں جا کر AC شہریار صاحب یا ان کے PA کے سوا کسی سے بھی نہیں ملنا. ان دونوں سے ہٹ کر کسی تیسرے فرد کو میرے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیے گا. عامر کے پیچھے دروازے تک جاتے ہوئے اس نے کئی بار کی ہوئی نصیحت ایک بار پھر دہرا دی. عامر یا سرمد کو اس نے اپنے تمام حالات زندگی بتا ڈالے تھے. ان لوگوں کو بس اتنا علم تھا کہ وہ اپنے کچھ دشمنوں سے چھپتی پھرتی ہے اور اس سلسلے میں اسے شہریار کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مجھے تمہاری تمام ہدایات یاد ہیں. تم بالکل بے فکر رہو اور اچھے طریقے سے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھنے کے بعد آرام سے میری واپسی کا انتظار کرو. وہ اسے جواب دے کر تیزی سے باہر نکل گیا. اس کا رخ شہر سے باہر جانے والی بسوں کے اڈے کی طرف ہی تھا. اڈے پر پہنچ کر اس نے پہلے ٹکٹ خریدا، پھر ایک کیبن سے سگریٹ کا پیکٹ خریدنے کے بعد اس کے سامنے لگے سٹال سے آج کا اخبار خرید لیا. وہ باقاعدگی سے اخبار پڑھنے کا عادی بالکل نہ تھا. کبھی کبھار اہم خبر کے لیے کوئی اخبار خرید لیا کرتا تھا. اس نے راستے کی بوریت سے بچنے کے لیے اخبار خریدا، لیکن بس میں بیٹھنے کے بعد اسے بور ہونے کا بالکل موقع مل ہی نہ سکا. اس کے ساتھ بیٹھا ہوا مسافر بے انتہا باتونی شخص تھا جو بہت بے تکلفی سے اس سے باتیں کرتے ہوئے قصوں پر قصے سناتا چلا جا رہا تھا. مسافر کا انداز گفتگو اتنا سادہ اور عام سا تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا. وہ خود بھی اسے اپنے دفتر اور دوستوں کے متعلق کئی باتیں بتاتا رہا. اپنے خوش اخلاق ہم سفر کی وجہ سے اسے احساس بھی نہ ہوا اور سفر تمام ہوا. ساتھی مسافر سے ایک گرم جوش مصافحہ کرنے کے بعد وہ تیزی سے بس سے اترا اور اڈوں پر موجود رکشوں میں سے ایک میں سوار ہو کر اسے AC صاحب کے دفتر پہنچنے کا کہہ دیا.
लाहौर के बस अड्डे से खरीदा हुआ अखबार रोल की शक्ल में अब भी उसके हाथ में ही था। रक्शे में बैठे बैठे उसने फौरन अखबार खोला और उसका यूं ही सरसरी सा जायजा लेने लगा। सरसरी जायजा लेती हुई उसकी नजरें एक तस्वीर पर आकर ठहर गईं। वो तलाशे गुमशुदा का इश्तहार था, जिसमें तस्वीर में मौजूद लड़की के बारे में इत्तला फराहम करने वाले के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया था। ऐलान के साथ एक मोबाइल नंबर भी मौजूद था, जिस पर लड़की के मुताल्लिक जानने वाले को राब्ता करना था। वो उस लड़की के बारे में अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वो उसके अपने घर में ही मुकीम थी। भाई जरा तेज चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। इश्तहार पढ़कर वो खुद लालच में मुब्तला नहीं हुआ था, लेकिन उसे अंदाजा था कि वो सारे लोग जिन्होंने माहबानों को उसके घर में देख रखा है, उनमें से किसी की भी नजर अगर इस इश्तहार पर पड़ गई तो 1 लाख रुपए के लालच में वो इस फोन नंबर पर जरूर इत्तला पहुंचा देंगे। अखबार में गुमशुदगी का इश्तहार देने वाले लोग उसके खैरख्वाह थे या दुश्मन, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द उन लोगों के पास पहुंचा जाए जिनके बारे में महबानों को हतमी यकीन था कि वो उसके सच्चे हमदर्द और खैरख्वाह लोग हैं। फूलों की पत्तियों से भरा थैला गाड़ी में रखने के बाद उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और कोठी की तरफ रवाना हो गया। मोतीवाला की मौत के बाद भी उसकी मुलाजमत जारी थी। मोतीवाला के कज़न ने किसी तरह से इस बात की इजाज़त ले ली थी कि कोठी के 1-2 कमरे 40वें तक ज़रूर खुले रहेंगे, और अब वो अपने अकीदे और मसलक के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन इन दोनों कमरों में कोई न कोई ऐसा काम करवाता रहता था जो उसके यकीन के मुताबिक मोतीवाला और उसकी बीवी की मग़फ़िरत के लिए मददगार साबित हो सकते थे। मरने वाला अपने साथ जो अमालनामा लेकर गया है, उसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला के यहाँ ही उसका मामला होगा। इस हकीकत से नज़र चुरा कर मरने वाले के लवाहिकीन अपने तौर पर इस कोशिश में लगे ही रहते हैं कि किसी न किसी तरह जाने वाले के लिए कोई बंदोबस्त कर दें, ताकि वो जहन्नुम के शोलों से बचकर जन्नत के बागात में जा निकले। इस ख्वाहिश में लोग अपनी हद से भी तजावुज़ कर जाते हैं और ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जो सरीहन खिलाफ शरा होते हैं। बाज़ औक़ात इन सारी रसूमात के पीछे मरने वाले से मोहब्बत या हमदर्दी के बजाय सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी के तकाजे मकसूद होते हैं। मोतीवाला का कज़न इस दूसरी कैटेगरी का बंदा लगता था। आज भी उसने ईसाले सवाब के लिए जाने किन किन मदरसों और मस्जिदों के मौलवियों को जमा करवा कर उनकी दावत का इंतज़ाम कर डाला था। खाने के बाद तमाम लोग कब्रिस्तान भी जाने वाले थे। फूल की ये पत्तियां कब्र पर डालने के लिए ही मंगवाई गई थी। मैं पत्तियां लेकर आ गया हूँ, तू बता कि अंदर का क्या हाल है, खाना वाना चला कि नहीं। कोठी पहुँचने के बाद शाकिर से सामना होने पर उसने उससे फौरन सवाल किया, खाना इतनी जल्दी कैसे ख़त्म होगा? ऐसी शानदार मुर्गी की बिरयानी और कढ़ाई पक कर आई है कि जब तक तमाम लोग हलक हलक तक ठूंस नहीं लेंगे, किसी का हाथ कभी रुकेगा? शाकिर ने तड़क कर जवाब दिया और उसके करीब ही बैठ गया। चल, जो कुछ भी है, फिलहाल तो हमारी नौकरी चल रही है ना, 40वें तक हम भी भाग दौड़ करके कोई ना कोई नौकरी तलाश कर लेंगे। मेरा इरादा है कि यहाँ से फारिग होकर एक जगह इंटरव्यू के लिए चला जाऊँगा। एक दोस्त ने बताया था कि एक सेठ साहब को अपनी बीवी की गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। हाँ भाई हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। काश साहब की मेहमान लड़की का ही कुछ अता पता मालूम हो जाए तो ऐश हो जाएगी। क्या मतलब, क्या फ़ायदा होना था उसका पता मालूम होने से? वो शाकिर की बात पर चौंक पड़ा। आज के अखबार में उस लड़की की फ़ोटो आई है ना, लड़की के बारे में इत्तला देने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। कहाँ है अखबार? मुझे भी तो दिखा। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। मैंने सामने ग्रिल में ही अटका दिया था। यहाँ अब अखबार पढ़ने वाला कौन रह गया? मैं ही कभी कभार हाथ मार लेता हूँ और नज़र डाल लेता हूँ अखबार पर। पहले ख्याल आया था कि साहब के कज़न से कहूँ कि अखबार बंद करवा दे। फिर सोचा कि जिस तरह हमारी रोजी रोटी लगी है, इसी तरह अखबार वाले की भी सही। बेचारे अखबार वाले का भी तो कुछ रोज़ का भला हो जाएगा। शाकिर और मैं आपस में बोल रहे थे, लेकिन मेरी तवज्जो शाकिर की बातों की तरफ बिल्कुल नहीं थी। मैं अपनी जगह से उठकर तेजी से ग्रिल में अटके हुए अखबार की तरफ बढ़ चुका था और अब अखबार खोले शाकिर की फराहम करदा इत्तला की तस्दीक के लिए कोशिश में लग चुका था। जल्द ही मैंने इश्तहार तलाश कर लिया।
इनाम की रकम और फ़ोन नंबर दोनों देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। नीलम तक पहुंचने के लिए एक रास्ता खुलता चला जा रहा था। यार शाकिर, ये गाड़ी की चाबी रख। फूलों की पत्तियां गाड़ी में ही रखी हैं। मुझे नौकरी के लिए एक जगह बहुत ज़रूरी पहुंचना है। तू साहब से बहाना बना देना कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं जल्दी घर चला गया। अखबार का इश्तहार वाला सफ़ा रोल करके अपने कब्जे में करते हुए उसने उजलत में गाड़ी की चाबियां शाकिर को तेजी से थमाई और कोठी के गेट से बाहर निकल गया। यार, कहीं साहब इस तरह जाने पर नाराज ना हो जाएं। शाकिर ने उसे एहसास दिलाने की कोशिश की। होते हैं तो हो जाएं, मेरा भी तो जाना बहुत ज़रूरी है। वो मुड़े बगैर जवाब देकर तेजी से बाहर निकल गया। उसके पास मोबाइल बिल्कुल ना था और इस इलाके में कोई पीसीओ भी ना था। बड़ी बड़ी कोठियों वाले इलाके से बाहर निकलकर उसने करीब वाक़े कमर्शियल एरिया का रुख किया। इस इलाके में लग्जरी फ्लैट्स बने थे। इन तमाम फ्लैट्स के सामने मुख्तलिफ शॉपिंग स्टोर्स और दीगर दुकानें बनाई गई थीं। उसे उम्मीद थी कि वहाँ किसी न किसी जगह पर कोई पब्लिक कॉल बूथ की सहूलत मिल जाएगी। उसका ये यकीन गलत साबित ना हुआ। एक मेडिकल स्टोर पर उसे फ़ोन की सहूलत मिल गई। उसने अखबार खोलकर इश्तहार निकाला और धड़कते दिल के साथ उसमें दिया हुआ फ़ोन नंबर मिला दिया। हेलो। राब्ता मिलने पर एक करख्त सी आवाज़ सुनाई दी। आज के अखबार में एक लड़की की गुमशुदगी से मुतल्लिक जो इश्तहार छपा है वो आपने ही छपवाया है। किसी भी किस्म की कोई इत्तला फराहम करने से पहले ही उसने तस्दीक करना बहुत ज़रूरी समझा था। हाँ, इश्तहार हमने ही दिया है। तुम बोलो, तुम्हें लड़की के बारे में क्या मालूमात मिली हैं? दूसरी तरफ से बेचैनी से पूछा गया। कुछ नहीं, बहुत कुछ मालूम है, मगर कोई भी इत्तला देने से पहले मैं इनाम की रकम के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो मोतीवाला की कोठी से यहाँ तक का फासला तय करने तक मुसलसल अपने दिमाग में सोचता चला जा रहा था कि क्या गुफ्तगू करनी है, और उसने एक अच्छा लाएअमल तैयार कर रखा था। इनाम का कोई मसला नहीं, इनाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा, मगर पहले तुम कुछ हमें बताओगे तब। वहाँ लगता था कि सब्र करना मुश्किल हो रहा है। इनाम तो तुम्हें देना ही होगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं इनाम में 1 लाख के बजाय 2 लाख रुपए लूँगा। उसने अपना मुतालबा भी बयान कर दिया। 2 लाख रुपए, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। करख्त आवाज़ वाले शख्स ने एतराज़ किया। ज़्यादा हैं तो रहने दो, मैं भी इत्तला नहीं पहुँचाऊँगा। अच्छा रुको, ऐसा करो 5 मिनट सब्र करो, मैं मशवरा करने के बाद तुम्हें जवाब देता हूँ। उसका जवाब नफ़ी में सुनकर फ़ोन वाला आदमी फ़ौरन से घबरा कर बोला, ठीक है, तुम मशवरा कर लो, मैं 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करता हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया और टहलता हुआ आगे निकल गया। 5 मिनट का वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसे लगता था कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। ये भी तो हो सकता है कि 5 मिनट के इस वक्फे में कोई दूसरी कॉल आ जाए जो महबानों के बारे में इत्तला दे दे। आखिर सरमत के मोहल्ले में कई लोग महबानों की सूरत से आशना थे। उनमें से भी तो कोई इश्तहार पढ़कर फ़ोन कर सकता था ना। किसी और के इस मुख्तसर से फ़ोन करने के खदशे को वो इस तसल्ली के सहारे झटकने की कोशिश में मसरूफ़ था कि जब सुबह से अब तक किसी ने अखबार देखकर फ़ोन नहीं किया, तो अब कौन इतनी सी देर में फ़ोन कर देगा। आखिर खुदा करके ये 5 मिनट भी गुजरे। इस बार उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर का फ़ोन इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ से कॉल उसी पहले वाले शख्स ने रिसीव की। फिर क्या फैसला किया तुम लोगों ने? उसकी आवाज़ सुनते ही अपने लहजे को ज़रा रोबदार बनाते हुए उसने दोबारा से सवाल किया। हम राज़ी हैं, तुम लड़की का पता बताओ जल्दी। पता जानने के लिए तुम 1.25 घंटे बाद भाटी गेट पहुंचकर मुझसे मिलो। साथ में 2 लाख की रकम भी ले आना। ठीक है, लेकिन हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? उसकी तमाम बात सुनते ही दूसरी तरफ से बेचैनी से सवाल किया गया। मैंने खाकी रंग की पतलून पर सफ़ेद कमीज पहन रखी होगी और आंखों पर धूप का चश्मा लगाया होगा। खुद पर एक नज़र डालने के बाद उसने अपना हुलिया पूरा बयान किया और फ़ोन बंद करके कॉल की पेमेंट कर दी। बाहर आकर सड़क पर एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ गया। यहाँ से भाटी गेट पहुँचने के लिए उसका लगाया हुआ अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। टैक्सी ने 1.25 घंटे से बस 1 मिनट ऊपर ही उसे वहाँ पहुँचाया। टैक्सी का किराया देकर वो जैसे ही नीचे उतरा, 2 बंदे लपक कर उसकी तरफ बढ़े। उनमें से एक के हाथ में स्याह बैग मौजूद था। तुम ही हो ना हमें फ़ोन करके इत्तला देने वाले शख्स? तुम्हारी फरमाइश पर हम 2 लाख रुपए के साथ तुम्हारे करीब मौजूद हैं। अब तुम हमें लड़की का पता बता दो।
जल्दी करो। पहले रकम, उसने मुतालबा किया। जवाबन उसके हाथ में बैग थमा दिया गया। उसने बैग की जिप खोलकर अंदर झांका। अंदर रकम मौजूद थी और खासी महसूस होती थी। रकम गिनने का मौका बिल्कुल न था, इसलिए उसे अंदाजे पर यकीन करना पड़ा। अब चलो, और हाँ, याद रखना कि हमें धोखा देने की कोशिश बिल्कुल न करना। हमारे बंदे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें लगने वाली गोली किस तरफ से चलाई गई थी। रकम से भरा बैग देने वाला सर्द लहजे में बोल रहा था। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ती महसूस हो रही थी, लेकिन रकम के लिए इतना रिस्क तो लेना ही था। मेरे साथ आओ। खुद को बाएतमाद जाहिर करते हुए उसने संजीदगी से जवाब दिया और कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। जरा सा फासला तय करते ही उसे एहसास होने लगा था कि इलाके में कुछ कशीदगी सी फैली है। जगह जगह लोग टोलियों की सूरत में खड़े आपस में कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं। वो इस सूरत हाल को नजरअंदाज कर गया। इस इलाके में रहने वालों के मिजाज के बारे में वो अच्छे तरीके से वाकिफ था। जरा जरा से मसाइल पर वो लोग इसी तरह टोलियां बनाकर घंटों घंटों आपस में तबसरे और बहस पर वक्त जाया कर सकते थे। वो अपने साथ मौजूद बंदों को लेकर आगे बढ़ता चला गया। चौकन्ने से होकर तमाम लोग उसके पीछे ही चलते रहे। रास्ते में उन्होंने एक पुलिस मोबाइल वैन को भी देखा। कोई गड़बड़ तो नहीं है? उसके पीछे चलते बंदों में से एक ने गुर्राहट आमेज आवाज में उससे सवाल किया। मेरी तरफ से तो कुछ नहीं। अगर तुम पुलिस मोबाइल देखकर कुछ कहते हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पुलिस तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन कम से कम मैं पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करके 2 लाख की रकम से महरूम होना पसंद नहीं करूंगा। सुना तुम लोगों ने? उसका जवाब हकीकत पर मबनी था, इसलिए वो लोग खामोशी इख्तियार करके चुपचाप चलते रहे। मगर आमिर की गली के कोने में पहुंचकर वो खुद बुरी तरह से ठिठक गया। वहां पुलिस वालों की अच्छी खासी तादाद नजर आती थी। लोगों का भी काफी हुजूम वहां नजर आ रहा था। हर चेहरे पर खौफ की तहरीर साफ पढ़ी जाती थी। क्या हुआ भाई, क्या मामला है? हुजूम में नजर आने वाले एक शनासा चेहरे को देखकर वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। वो आमिर की गली के कोने वाले घर में रहने वाला एक सब्जी फरोश था। तुम आमिर के दोस्त हो ना? बजाय उसके सवाल का जवाब देने के उस शख्स ने इससे सवाल किया। हाँ, मैं आमिर का दोस्त हूँ, लेकिन आप बताओ कि यहाँ क्या हुआ? ये इतनी पुलिस यहाँ क्यों जमा है? लोगों को गली के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? उसने एक साथ कई सवाल कर डाले। बहुत बुरा हादसा हुआ भाई। तुम्हें शायद मालूम हो कि आमिर के पड़ोस वाले घर में पटाखे, फुलझड़ियाँ और दूसरी बारूद वाली चीजें बनती थी। पता नहीं वहाँ किस तरह आग लगी और सारा बारूद लपेट में आ गया। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि हमारे घरों की खिड़कियां दरवाजे तक हिलकर रह गए। वो कमबख्त गुल्लू खुद तो मारा ही गया, साथ में दूसरों को भी ले डूबा। बेचारे आमिर के घर की दीवार तो उसके बारूद वाले कमरे से बिल्कुल मिली हुई थी। गुल्लू के घर के साथ वहां भी तबाही मच गई। आमिर की माँ और उसकी रिश्तेदार लड़की की लाशें भी अभी अभी पुलिस वालों ने मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचा दी हैं। तुम्हें अगर आमिर के बारे में कुछ मालूम है तो इस कयामत की उसे जरा खबर कर दो। बेचारे की एक ही तो माँ थी, अब वो भी नहीं रही, घर भी तबाह हो गया। ये सब कुछ मालूम होगा ना तो उसे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचेगा। सदमा तो खैर सारे मोहल्ले को है। इकट्ठे 3 बंदे मारे गए। मोहल्ले के लोगों का भी माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। पीछे परवेज के घर की दीवार भी चटक गई थी। बरकत खाला के बावर्ची खाने की दीवार भी उड़ गई। कई लोगों के घरों में शीशे के बर्तन वगैरह गिरकर टूट गए, जिससे बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ। वो जाने कौन कौन से नुकसानात गिनवाता चला जा रहा था, लेकिन सरमत का जहन तो अपने ही नुकसान में अटका पड़ा था। आमिर की माँ और उसकी रिश्तेदार खातून की निकलने वाली लाशों की इत्तला ने खुद उसके अपने ख्वाबों को बहुत बुरी तरह से तोड़ फोड़ के रख दिया था और उसे अलग महसूस होता था कि टूटे हुए ख्वाबों का मलबा उस पर धड़ाधड़ गिरता चला जा रहा है और वो किसी गहरी कब्र में दफन होता जा रहा है। बाएं हाथ में थामा बैग जिसमें 2 लाख की रकम मौजूद थी उसकी गिरफ्त से फिसलता जा रहा था। वो जिसका सौदा करके इस 2 लाख की रकम का मालिक बन बैठा था, जब वही नहीं रही तो ये 2 लाख भी कैसे उसके हो सकते थे? रकम लेकर फरार हो जाने का उसके दिल में ख्याल भी ना आता था, क्योंकि वो दोनों मुनकिर नकीर की तरह उसके सर पर ही सवार थे।
2 लाख की रकम से उसने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। वो सोच रहा था कि इस रकम से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करके नीलम के घर वालों को रिश्ते के लिए राजी कर सकेगा। उन्हें नीलम के रिश्ते पर सबसे बड़ा यही एतराज था कि वो एक ड्राइवर है जिसकी माशरे में कोई इज्जत नहीं हुआ करती। इस नौकरी के मुकाबले में अगर परचून की छोटी सी दुकान भी खोल लेता तो रिवायती सी सोच रखने वाले नीलम के वालिदैन के लिए काबिले कबूल हो जाता। लेकिन इस नागहानी हादसे ने उसकी ये सारी उम्मीदें भी तोड़ डाली थी। वो खाली खाली नजरों से वहां भाग दौड़ को देख रहा था। पुलिस वालों के अलावा वहां पर इमदादी कारकुन भी भागते और आते जाते नजर आ रहे थे। एक छोटा झमगट्टा मीडिया के अफराद का भी नजर आता था जिन्होंने पुलिस के एक अफसर को घेर रखा था। हादसे को किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की वारदात के बजाय इत्तफाकी हादसा साबित करने में जोर शोर से मसरूफ पुलिस अफसर को उसने आसानी से शनाख्त कर लिया। वो रफीक खोकर था, मोतीवाला के केस का तफ्तीशी अफसर। अगर वो उसे यहाँ देख रहा था तो उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो सकती थी। रफीक खोकर से बचने के लिए वो हुजूम से बाहर निकलने के लिए तेजी से पलटा। उसके सर पर सवार मुनकिर नकीर फौरन ही होशियार हो गए। किधर किधर? उनमें से एक ने गुर्राहट आमेज सरगोशी में पूछा। यहाँ से निकलो, फिर मैं तुम लोगों को सारी बात बताता हूँ, उसने जवाब दिया और तेजी से कदम आगे बढ़ा दिए। वो दोनों साए की तरह उसके साथ साथ चल रहे थे। आमिर के घर से काफी दूर आने के बाद वो एक कोने में आकर रुक गया। उन दोनों ने भी उसकी पैरवी की। मामला क्या है? कुछ मुंह से फूटो तो सही। तुम तो हमें लड़की तक पहुंचाने वाले थे। लड़की कहाँ है? साफ साफ बताओ, जल्दी करो। उन लोगों के सब्र का पैमाना तकरीबन लबरेज हो चुका था। चुनाचे उनमें से एक ने सख्त लहजे में उससे सवाल किया। मैं तुम्हें लड़की के पास ही पहुंचा रहा था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं रहा। अब मैं तुम्हें उसके बारे में सिर्फ खबर दे सकता हूँ। तुमने अपने इश्तहार में लड़की के बारे में इत्तला देने वालों के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया था। मैं इन रुपयों में से 1 लाख रुपए वापस करके 1 लाख रुपए अपने पास रखूंगा और लड़की के बारे में खबर देता रहूंगा। आमिर की गली के कोने से यहाँ तक पहुँचने में उसके दिमाग ने तेजी से काम किया था और पूरी की पूरी रकम से महरूम हो जाने के बजाय उसने सोचा कि कुछ न कुछ तो हाथ लग ही जाएगा ना। इसलिए अब वो उन लोगों से नया सौदा तय करने की कोशिश करने में मसरूफ था। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? हमें तूने क्या समझ रखा है जो अपने इशारों पर नचाने की कोशिश में मसरूफ है? उसके मुकाबिल मौजूद लोग कोई शरीफ किस्म के कारोबारी बंदे तो थे नहीं कि उसकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक सौदेबाजी करते चले जाते। वो फौरन ही हत्थे से उखड़े और उनमें से एक ने उसकी गुद्दी को अपने शिकंजे जैसी उंगलियों में अचानक से जकड़ लिया। चल, सीधी तरह हमें लड़की तक पहुंचा दे, जल्दी कर। वो जहां खड़े थे उस तरफ लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल ना थी, इसलिए सामने खड़े बंदे ने बिला तकल्लुफ उसके मुंह पर अपना हथौड़े जैसा हाथ भी दे मारा था। अब मैं तुम्हें लड़की तक बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता ना। अगर ये मुमकिन होता तो मैं 1 लाख का नुकसान क्यों करता? मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुझसे 1 लाख रुपए वापस ले लो और 1 लाख रुपए छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा। उसे अंदाजा हो चुका था कि वो खतरनाक लोग हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए का खतरा मोल लेकर उनसे किसी न किसी मामले पर बहस करना और मामला तय करना लाजमी था। तुझसे क्या लेना है और तुझे क्या देना है, ये फैसला हम खुद करेंगे। तू सीधी तरह ये बता कि लड़की कहाँ है। बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने अपनी सर्द आंखों से उसे घूरते हुए सवाल किया और जेब में हाथ डालकर चाकू बाहर निकालकर उसे खोलने लगा। कड़कड़ाहट की हल्की सी आवाज के साथ चाकू खुल गया और उसका चमकदार फल उसकी नजरों के सामने लहराने लगा। इस चाकू के नजारे के बाद सरमत की सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसे अंदाजा हुआ कि वो उन लोगों के सामने मजीद टिक नहीं सकेगा। चुनाचे सहमे हुए लहजे में बताने लगा, तुम्हें जिस लड़की की तलाश थी वो मेरे एक दोस्त आमिर के घर ठहरी हुई थी। मैं तुम्हें उसी दोस्त के घर ले जा रहा था, लेकिन अभी मेरे साथ तुम लोगों ने भी सुन लिया कि बारूद फरोश पड़ोसी के यहाँ धमाके में मेरे अपने दोस्त का भी घर तबाह हो गया और मेरे दोस्त की माँ के साथ साथ वो लड़की भी इस हादसे में मर गई। उसकी दी हुई इस इत्तला पर वो लोग एक लम्हे के लिए दम बखुद खड़े रह गए। फिर बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी ने खुद को संभाला और सख्ती से पूछा, लड़की वहाँ कैसे पहुंची थी? मैंने खुद उसे वहाँ पहुँचाया था। मैं मोतीवाला साहब का ड्राइवर हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था
कि इस लड़की को अपने घर ले जाओ क्योंकि इसे जान का खतरा है, इसलिए मैं इसे यानी लड़की को किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचा दूं। उनके हुक्म पर ही मैंने उस रात जब उनका कत्ल हुआ तब लड़की को अपने दोस्त के घर पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक हम परेशान हो रहे थे कि अब लड़की का क्या करेंगे। मैंने अखबार में इश्तहार पढ़ लिया तो पैसों के लालच में आकर आपको फोन कर बैठा, लेकिन अब वो बेचारी जिंदा ही नहीं रही तो आपको कहाँ पहुंचाऊं। सच में झूठ की आमेजिश करते हुए उसने उन लोगों को कहानी सुना दी। ये सब कहने में उसे इसलिए मुश्किल पेश नहीं आई थी कि शहरयार से मुलाकात के लिए रवाना होने से पहले ही वो लोग ये कहानी तैयार कर चुके थे। सरमद इस शख्सियत को किसी तरह से भी ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि मोतीवाला और उसकी बीवी के कत्ल वाली रात वो उनकी कोठी में चोरी की नियत से दाखिल हुआ था और उसका अपना क्या इरादा था। इसलिए ये कहानी तैयार की गई। महबानों ने भी इस कहानी की मंजूरी देते हुए वादा किया था कि वो किसी को असल हकीकत नहीं बताएगी, चुनांचे इस वक्त यही कहानी उसके काम आती थी। तू हमें कहीं नहीं पहुंचा सकता, तू चल यहाँ से निकल, इन रुपयों में से तुझे एक पैसा भी मिलने वाला नहीं। ये जान लेने के बाद कि मरने वाली लड़की महबानो है और सरमद अब मजीद उनके काम नहीं आ सकता, उन्होंने सरमद की कमर पर एक जोरदार लात मारकर उसे परे धकेला और नोटों से भरा हुआ बैग फौरन संभाल कर तेजी से चल निकले। सरमद के अंदर हिम्मत ना थी कि इन तमाम खूनखार लोगों के पीछे जा सके।